Welcome to our YouTube channel. Today I am going to discuss with you Class 5 Chapter 3 The 1-inch Boys Question Answer Section. आज हम The 1-inch Boy के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. पहला है रीड एंड फाइंड. यह है कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस. 1 और 2 सेंटेंस में इसका आंसर लिखना है. First one is, how did the old man and his wife treat 1-inch boy? How did the old man and his wife treat the 1-inch boy? उस बूढ़े कपल, जो बूढ़े आदमी और औरत थे, वो 1-inch boy को कैसे टेक केयर करते थे, कैसे ख्याल रखते थे. आंसर होगा, the old man and his wife used to treat the 1-inch boy very nicely. He was like their own child. The parents used to fulfill his wishes every time. The old man and his wife used to treat the 1-inch boy very nicely. Treat मतलब अच्छे से ख्याल रखते थे उसका. He was like their own child. 1-inch boy उनका अपना बच्चा जैसा था. The parents used to fulfill his wishes every time. उसकी हर एक इच्छा पूरी करते थे. Number 2, despite his size, what things could 1-inch boy do? Despite his size, what things could 1-inch boy do? उसके छोटे कद की वजह से, जो छोटा था, उसके साइज की वजह से वो क्या क्या कर सकता था. उसके छोटे साइज के बावजूद वो क्या कर सकता था. Despite his size, 1-inch boy could help his parents and fight with the ogre. इस छोटे हाइट की वजह से भी उसने कभी हार नहीं मानी. उसने अपने पेरेंट्स की मदद की और उस दानव से उसने फाइट किया. Then answer is, despite his size, 1-inch boy could help his parents and fight with the ogre. Number 3, why did 1-inch boy want to go to Kyoto? Why did 1-inch boy want to go to Kyoto? 1-inch boy Kyoto क्यों जाना चाहता था? क्यों जाना था उसे? Seek his fortune. उसे बड़ा बनना था, कुछ बन के दिखाना था. The answer is, 1-inch boy wanted to go to Kyoto to seek his fortune. The 1-inch boy wanted to go to Kyoto to seek his fortune. उसे अपनी क्या करनी थी? बड़ा बनना था, कुछ करके दिखाना था. Number 4 is, describe 1-inch boy's boat and other things. Describe 1-inch boy's boat and other things. वर्णन कीजिए जो 1-inch boy का बोट कैसा था और उसने क्या क्या अपने साथ ले गया था, उसका वर्णन कीजिए. 1-inch boy could see a small bowl as a boat and his mother caught oats from chopsticks. 1-inch boy could see a small bowl as a boat and his mother caught oats from chopsticks. 1-inch boy के लिए उनके पिताजी जो क्या लाए थे? छोटा सा बोल, जिसको वो बोट की तरह इस्तेमाल कर सके. And his mother got oats from chopsticks. चॉपस्टिक जो चाइनीज लोग खाते हैं, नूडल्स, उस चॉपस्टिक से उसकी माँ ने क्या किया? ओट्स बनाए जो बोट को चलाने के लिए मदद हो सके. Number 5, how was 1-inch boy saved in the stormy river? How was 1-inch boy saved in the stormy river? उस तूफान वाले नदी से उसने खुद को कैसे बचाया? How was 1-inch boy saved? वो कैसे बचा उस तूफानी नदी में? The answer is,
A boatman could save the 1-inch boy in the stormy river. A boatman could save the 1-inch boy in the stormy river. अलग से एक बोटमैन ने उस 1-inch बॉय को उस नदी से बचाया. A boatman could save the 1-inch boy in the stormy river. Number 6. How did 1-inch boy's size help him in the city? How did 1-inch boy's size help him in the city? उस सिटी में जो क्योटो का सिटी था, उस सिटी में 1-inch बॉय का साइज उसे कैसे मदद कर रहा था? उसकी कद, हाइट उसे किसी तरह से मदद कर रहा था. Due to very small in size, उसके हाइट कम होने की वजह से the 1-inch boy could go everywhere without notice. The 1-inch boy could go everywhere without notice. उसे उसकी छोटी हाइट की वजह से वो किसी को भी बिना बताए कहीं भी जा सकता था. He could go through the gills and this helped him in the city. वो कहीं भी कभी भी जा सकता था. उसे कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो छोटा था, उसे कोई देख नहीं सकता था, नोटिस नहीं करता था. Number 7. Describe 1-inch boy's fight with the ogre. Describe 1-inch boy's fight with the ogre. जो दानव था उसने 1-inch boy से कैसे फाइट की और 1-inch boy उसके साथ कैसे लड़ा, तो उसे वर्णन कीजिए. 1-inch boy stepped inside the ogre's stomach with his sword. He scratched the beast everywhere. 1-inch boy stabbed मतलब उसने अपनी sword से, तलवार से उसने दानव के पेट में खोवा था अपनी तलवार से. He scratched, नोचा. He scratched the beast everywhere. उसने जब 1-inch boy उस दानव के पेट में, शरीर के अंदर गया तो उसने क्या किया, अपनी छोटी सी तलवार से उसने उस दानव के शरीर के अंदर हर तरफ उसने नोचना शुरू कर दिया. Number 8. What reward did the novel give 1-inch boy? What reward did the novel give 1-inch boy? नोवेल ने 1-inch boy को कैसा पुरस्कार दिया? पुरस्कार तो देना ही था क्योंकि नोवेल की लड़की को 1-inch boy ने बचाया था. What reward did the novel give 1-inch boy? The novel rewarded 1-inch boy half of his land. The novel rewarded 1-inch boy half of his land. नोवेल ने उस धनी व्यक्ति ने 1-inch boy को अपनी जमीन का आधा हिस्सा दे दिया. Number 9. What promise did 1-inch boy keep? What promise did 1-inch boy keep? 1-inch boy ने कौन सा प्रॉमिस रखा? उसने क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था? 1-inch boy promised to send for his parents when he had a fortune. 1-inch boy promised to send for his parents when he had a fortune. 1-inch boy ने अपने पेरेंट्स से, माता पिता से उन्हें प्रॉमिस किया था जब उसका वो कुछ बन जाएगा, कुछ कर जाएगा, वो अपने पास बुला लेगा, उन दोनों को अपने पास बुला लेगा. अब तो वो बड़ा बन गया है, देन उसने अपनी प्रॉमिस रख ली.
Number 10. Why do you think? Why do you think? आप क्या सोचते हैं? The noble's daughter agreed to marry 1-inch boy. Why do you think the noble's daughter agreed to marry 1-inch boy? नोबल की लड़की 1-inch बॉय से शादी करने के लिए क्यों राजी होती है? 1-inch boy saved the noble's daughter so that she agreed to marry him. 1-inch boy उस लड़की की जान बचाते हैं, इसलिए लड़की उसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है. 1-inch boy saved the noble's daughter so that she agreed to marry him. Number 2. Let's talk. Read and following dialogues. Then practice similar dialogues with your partners. यहाँ पर अनीता, मैन एंड वोमैन 3 persons चाहिए और डायलॉग एक्सचेंज करने के लिए आप ये घर पर प्रैक्टिस करो. फॉर प्रैक्टिस in the school, theater, bookshop, post office. और अपने मन से स्कूल में प्रैक्टिस कर सकते हैं और कहीं कहीं. वर्ड हंट. फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग. हमें ऑपोजिट्स लिखना है, विलोम शब्द ऑपोजिट्स. वेट. वेट मतलब गीला, ड्राई सूखा. ह्यूज बड़ा, टिन्नी छोटा. ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, टिन्नी मतलब बहुत छोटा. वीकर स्ट्रॉन्गर. वीकर दुर्बल, स्ट्रॉन्गर शक्तिशाली. यूजलेस यूजफुल. यूजलेस काम ना आना, यूजफुल काम में आना. एलोन अकेला, टुगेदर सब लोग मिलकर. एलोन अकेला, टुगेदर सब मिलकर. ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, एबनॉर्मल असाधारण. ऑर्डिनरी साधारण, एबनॉर्मल असाधारण. सॉरो जॉय. सॉरो हार जाना एंड जॉय विजय पाना. सॉरो जॉय. अनकंफर्टेबली अच्छा न लगना, अनकंफर्टेबली. प्लीजेंटली उसका ऑपोजिट है प्लीजेंटली, अच्छा लगना. देन करेक्ट ऑर्डर. पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, देन मैच द पिक्चर्स and the sentence. Put the words in correct order. Sentence दिया गया है, सेंटेंस में वर्ड्स जम्बल्ड किए गए हैं, इधर उधर लिखा गया है. हमें सेंटेंस को ठीक से लिखना है. फर्स्ट वन, ऑन स्ट्रेट गो. ऑन स्ट्रेट गो. यहाँ होगा गो ऑन स्ट्रेट, सीधा जाओ. गो ऑन स्ट्रेट, सीधा जाओ. गो ऑन स्ट्रेट. नंबर 2, क्रॉस रोड्स लेफ्ट द एट टर्न. क्रॉस रोड्स लेफ्ट एट द टर्न. यहाँ होगा टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड्स. जब क्रॉस रोड्स होते हैं वहाँ हमें लेफ्ट मुड़ना है, इसलिए टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड. टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड. नंबर 3, लाइट्स एट टर्न द राइट ट्रैफिक. लाइट्स एट टर्न द राइट ट्रैफिक. यहाँ होगा टर्न लेफ्ट at the traffic lights. Turn left at the traffic lights.
ट्रैफिक लाइट के टाइम पर हमें लेफ्ट घूमना है। देन नंबर 4, लेफ्ट सेकेंड द टेक रोड द अन। लेफ्ट सेकेंड द टेक रोड द अन। यहाँ होगा टेक, टेक द सेकेंड लेफ्ट ऑन द रोड, टेक द सेकेंड लेफ्ट ऑन द रोड। रास्ते में अब क्या करेंगे, लेफ्ट के सेकेंड लेफ्ट ऑन द रोड, टेक द सेकेंड लेफ्ट ऑन द road. This is complete. And grammar in use. Grammar in use. There is one mistake in each line of this passage. Passage में जितने सारे lines दिए गए हैं, each mistake, एक sentence में एक ही mistake हो रहा है। Underline the mistake and write in correct words on the given space. लेफ्ट साइड हमें सेंटेंस दिए गए हैं और राइट साइड स्पेस दिए गए हैं। लेफ्ट में कौन सा वर्ड रॉन्ग दिया गया है उसे चेंज करके हमें राइट में लिखना है। फर्स्ट लाइन इज द ताज इंटरकॉन्टिनेंटल इज द वेरी फेमस होटल इन मुंबई। द ताज इंटरकॉन्टिनेंटल इज द वेरी फेमस होटल इन मुंबई। ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ये मुंबई का सबसे अच्छा होटल है, फेमस होटल है। तो यहाँ द नहीं लगेगा, ए होगा। तो राइट सेंटेंस इज द ताज इंटरकॉन्टिनेंटल इज ए वेरी फेमस होटल इन मुंबई। सेकेंड इज देयर इज टू पार्ट्स, देयर इज टू पार्ट्स। There is two parts. The old Taj with 322 rooms. There is two parts. Two plural है इसलिए इसके पीछे is नहीं लगेगा, are लगेगा। There are two parts. The old Taj with 320 rooms. And third line is and the new modern parts with 330 rooms. New modern parts with 330 rooms. यहाँ भी R लगेगा। The new modern parts are 330 rooms. Number 4 line. This hotel is near a gateway of India. This hotel is near a gateway of India. गेटवे ऑफ इंडिया एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, इसके लिए इसके पीछे ए ना लगकर द लगेगा। दिस होटल इज नियर द गेटवे ऑफ इंडिया। देन फ्रॉम सम ऑफ द रूम्स there's a grand view for the sea. From some of the rooms there's a grand view for the sea. sea के लिए कभी भी for नहीं होगा तो of the sea होगा। From some of the rooms there's a grand view of the sea. Grand view of the sea. Then it's a 5-star hotel and all the rooms are very comfortably. It's a 5-star hotel and all the rooms are very comfortably. यहाँ होगा it's जो लिखा गया है इस यहाँ पर अपोस्ट्रोफिस कमा रहेगा, ऊपर कमा अपोस्ट्रोफिस। इट इज को शॉर्ट फॉर्म होगा इट इज ए
फाइव स्टार होटल। एंड सेकेंड लाइन में जो कंफर्टेबली लिखा है, कंफर्टेबली लिखा है, वहां कंफर्टेबली ना होकर कंफर्टेबल होगा, COMFORTABLE, कंफर्टेबल। इट इज आर वेरी कंफर्टेबल। द होटल हैज 5 excellent restaurants. The hotel has 5 excellent restaurants where service is very good. Where service is very good. यहाँ तक ठीक है। Then there's a swimming pool. There's a swimming pool ना होकर swimming pool होगा। There's a swimming pool. A healthy club. Healthy club ना होकर health club होगा। Healthy club H जो हो रहा है वो कैपिटल लेटर होगा क्योंकि वो एक क्लब का नाम है। Then H is capital letter here and remaining parts are right. Beautiful shops and an art gallery also. Beautiful shops and an art gallery also. Then define the following terms of English grammar giving examples. Define the following terms of English grammar and giving some examples. हमें यहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर्स दिए गए हैं जैसे कि नाउन, वर्ब्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस। इसका हमें डेफिनेशन बोलना है एंड कुछ एग्जाम्पल्स शो करना है। डेफिनेशन मीन्स हमें नाउन किसे कहा जाता है, जैसे हम कैसे जानेंगे कि ये नाउन है, ये वर्ब्स है या फिर एडवर्ब्स है। First one is noun. A noun is the name of a person, place or thing. A noun is the name of some person, place or things. नाउन ये है जो किसी का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या फिर कुछ चीज़ों के नाम हो सकते हैं। Just examples, कोलकाता is a big city. Kolkata is a place name. Gandhiji was a great man. Gandhiji is a person's name. Then verb. A verb says something about a person, place or things. Verb क्या होता है? A verb says something about a person do. हम जो करते हैं उसे verbs बोलते हैं। Examples, रघु lives in दिल्ली। रघु lives in दिल्ली। रघु दिल्ली में रहता है। I eat चपाती। मैं चपाती खा रहा हूँ, मैं खाता हूँ, वो खाता है। खाने का जो है वो verb है eat. Go, come, eat, sit, stand, walk, talk. These are verbs. The lion killed the goat. Lion goat को मार देता है। Killed is a verb. Number 3, pronoun. Pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. A pronoun is a word used in place of a noun. प्रोनाउन एक ऐसी वर्ड है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे नहीं लिख सकते राम अच्छे आदमी थे, राम की पत्नी सीता थी, राम भरत के भाई थे। हम बार बार लिखने में, हमें पढ़ने में इरिटेशन होता है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम राम के नाम के बदले वहाँ क्या यूज कर सकते हैं? ही। और लड़की हो तो शी, और प्लूरल हो तो दे। इन सबको हम प्रोनाउंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स आर जॉन हैज नॉट कम, ही इज इल। जॉन
हैज नॉट कम, ही इज इल। जॉन नहीं आया है, वो बीमार है। ही इज इल, ही इज यूज फॉर जॉन। ही जॉन के लिए यूज किया गया है, सो दैट ही इज ए प्रोनाउन। राधा वर्कड हार्ड, राधा वर्कड हार्ड, शी गॉट गुड मार्क्स, शी गॉट गुड मार्क्स। राधा कष्ट काम करती है, इसलिए उसने अच्छा मार्क पाया। तो शी इज यूज्ड फॉर राधा एंड शी इज ए प्रोनाउन वर्ड। Adjectives. An adjective adds something to the meaning of a noun. Adjective एक ऐसा वर्ड है जिसे नाउन के पीछे लगाया जाता है और नाउन के लिए लगाया जाता है। जैसे कि सुंदर लड़की, लड़की है नाउन और सुंदर है उसका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव गुण हो सकता है, परिणाम हो सकता है, परिमाण हो सकता है। टॉल गर्ल, राधा इज ए टॉल गर्ल, राधा लंबी लड़की है। टॉल इज ए एडजेक्टिव। यू आर ए नॉटी बॉय, यू आर ए नॉटी बॉय। और यू आर ए विकेट बॉय, यू आर ए ओल्ड मैन, शी इज ए ओल्ड मैन। ओल्ड, नॉटी, प्रिटी, ब्यूटीफुल, अगली, लवली, टॉल, ये सब एडजेक्टिव्स है। मनु इज ए ब्रेव बॉय, ब्रेव बॉय। मनु एक साहसी लड़का है। ब्रेव इज ए एडजेक्टिव। देन प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन shows the relationship of a noun or pronoun to another word in the sentence. प्रीपोजिशन को हमें क्या करना है? प्रीपोजिशन, इसका मतलब ये क्या होता है? प्रोनाउन और नाउन के रिलेशनशिप को देखकर हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ता है। देखिए एग्जांपल्स। द बॉय रैन आफ्टर द बॉल, द बॉय रैन आफ्टर द बॉल। लड़का बॉल के पीछे भाग रहा होता है। आफ्टर इज ए प्रीपोजिशन वर्ड। देयर वाज ए काउ इन द गार्डन, देयर वाज ए काउ इन द गार्डन। गार्डन में एक काव है, गार्डन के अंदर। इन इज ए प्रीपोजिशन। इन, ऑन, अंडर, आफ्टर, बिफोर, दीज आर prepositions. Number last one is conjunction. A conjunction is used to join words or sentence. Conjunction एक ऐसा वर्ड है जो वर्ड को या फिर सेंटेंस को मिलाता है, जोड़ता है। She worked hard but failed. उसने ज्यादा काम किया, कष्ट किया, परंतु वो फेल हो गया। But failed. रानी एंड नेहा, रानी और नेहा आर गुड फ्रेंड्स। रानी और जो होता है एंड, वो कंजक्शन है। रानी एंड नेहा आर गुड फ्रेंड्स। देन लास्ट वन इज लेट्स राइट। इवेंट्स फ्रॉम लेसन्स आर गिवन बिलो, नंबर देम द ऑर्डर व्हिच दे हैपन टू स्टोरी। हमने जो 1 इंच पोएम में पढ़ा था उसको 1 by 1 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड किया गया है और सेंटेंस को उलट पुलट कर लिखा गया है। हमें वहाँ राइट इन ऑर्डर में 1, 2 लिखना है। फर्स्ट वन इज द ओल्ड मैन फाउंड 1 inch boy near his doorway. The old man found 1 inch boy near his doorway. एक बूढ़ा आदमी अपने दरवाजे के पास एक छोटा सा 1 inch बॉय को देखता है। उसके बाद 4 लाइन्स दिए गए हैं। पहले हम 4 लाइन्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। 1 inch boy helped his parents. The bowl was flooded in the storm. 1 inch boy set up down the river in the bowl. The boatman rescued 1 inch boy and took him in Kyoto. पहला है the old man found the 1 inch boy near his doorway. पहले 1 inch boy को वो बूढ़ा आदमी
पा लेता है। नंबर 2, 1 इंच बॉय हेल्प हिज पेरेंट्स। 1 इंच बॉय जब बड़ा होता है पेरेंट्स की हेल्प करता है। देन 1 inch boy sent off down the river in his bowl. 1 inch boy sent off down the river in his bowl. अपने बोल में बैठकर वो नदी की ओर चल पड़ता है। Then number 4, the bowl was flooded in the storm. The bowl was flooded in the storm. तूफान में उसका बोल क्या होता है, इधर उधर लुढ़कने लगता है, पानी भर जाता है। नंबर 5, the boatman rescued 1 inch boy and took him to Kyoto. The boatman rescued 1 inch boy and took him to Kyoto. क्यूटो जाने के लिए उसने 1 इंच बॉय को बोटमैन बचाता है और अपने साथ क्यूटो ले जाता है। पार्ट 2, नंबर 6, 1 inch boy asked the great lord for food and shelter in return for his service. Number 6, 1 inch boy asked the great lord for food and shelter in return for his service. 1 इंच बॉय क्या करता है, उस ग्रेट लॉर्ड को, नोवेल को घर और खाना के लिए खाना मांग रहा होता है, रिटर्न फॉर हिज सर्विस। वो बोलता है मैं आपका सेवा करूंगा और उसके बदले आप मुझे खाना दे दो। नंबर 6। नंबर 7 इज द ओगर swallowed 1 inch boy. The ogre swallowed 1 inch boy. दानव क्या करता है, 1 इंच बॉय को निगल लेता है। द ओगर swallowed 1 inch boy. नंबर 8 इज 1 inch boy fought inside the ogre. 1 inch boy fought inside the ogre. ओगर के पेट में जाकर, अंदर जाकर 1 इंच बॉय अपनी स्वॉर्ड से उसके साथ फाइट करता है। नंबर 9 इज the ogre sneezed and 1 inch boy was free. The ogre sneezed and 1 inch boy was free. जब ogre छींकता है, sneeze, 1 inch boy free हो जाता है। Then number 10 is 1 inch boy made a wish with the ogre's charm and he grew tall. 1 inch boy made a wish. 1 inch boy के उस जादुई नेकलेस को पहनकर कुछ मांगता है एंड देन ही ग्रू टॉल। उसके बाद वो लंबा नौजवान लड़का बन जाता है। पार्ट 3, 11 नंबर, द नोवेल रिवार्डेड 1 inch boy with half of his lands. The novel rewarded 1 inch boy half of his land. नोवेल क्या करता है, 1 इंच बॉय को अपनी आधी जमीन दे देता है पुरस्कार के तौर पर। Then number 12 is 1 inch boy sent for his parents. 1 inch boy sent for his 12 number is the noble's daughter agreed to marry 1 inch boy. जब नोवेल अपनी जायदाद से जमीन की आधी दे देता है, then noble's daughter agreed to marry the 1 inch boy. नोवेल की लड़की राजी हो जाता है उसको उस 1 इंच बॉय से शादी करने के लिए। Then last one, number 13, 1 inch boy sent for his parents. 1 inch boy sent for his parents. उसके बाद 1 इंच बॉय अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला लेता है।